کوٹ لکھپت جیل میں 61 قیدیوں کو رہا کرنے کی تقریب کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تقریب میں خصوصی شرکت بھی ہوئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے رہا ہونے والے قیدیوں کو عیدی بھی دی۔ دیت اور جرمانوں کی ادائیگی کے بعد 61 قیدیوں کی رہائی عمل میں لائی گئی۔ اسی پر بات کریں گے لیاقت علی سے۔ لیاقت، اس تقریب کا حوال بتائیے گا۔ کوٹ لکھپت سینٹرل جیل جو کوٹ لکھپت ہے وہاں پر یہ تقریب ہوئی ہے اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا اور عید الفطر کے موقع پر 61 قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ دیت کی رقم جو ہے محسن نقوی کی ذاتی کوآپشن سے عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن نے دی اور جرمانوں کی مد پہ تقریباً 11 کروڑ روپے ادا کیے گئے، جس کے بعد ان 61 قیدیوں کی جو رہائی ہے وہ عمل میں آئی۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ نے رہا ہونے والے قیدیوں کو عیدی بھی دی اور ان کا کہنا تھا کہ اسیران کو رہائی کے بعد معاشرے کا مفید شہری بن کر دکھانا ہے اور باہر جا کر کسی سے لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے، بلکہ ذمہ دار شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے۔ اس موقع پر محسن نقوی نے جیل ملازمین کے لیے پولیس شہدا پیکج کی طرز پر مساوی پیکج دینے کا بھی اعلان کیا اور ان کا کہنا تھا کہ جیل ملازمین کی تنخواہوں کے پیکج پر بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ لیاقت، یہ بتائیے گا کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ساتھ اور کون کون سے اہم رہنما اور وزراء موجود تھے اور ضلع انتظامیہ کے کون کون سے آفیسر اس تقریب میں براجمان تھے؟ دیکھیں، جو جیل میں ہونے والی اس تقریب میں جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات موجود تھے، چیف ایگزیکٹو آفیسر عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن جو ہے برگیڈیئر ریٹائرڈ خالد بشیر بھی اس موقع پر موجود تھے، صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سی پی او لاہور، سیکرٹری انفارمیشن کمشنر لاہور ڈویژن، آئی جی جیل خانہ جات، چیف ایگزیکٹو آفیسر جو متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں وہ موجود تھے۔ اور اس موقع پر جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ جیل ملازمین کے لیے بھی خوشخبری سنائی کہ ان کے پروموشن کیسز جو ہے جیل ملازمین کے ان کو بھی نپٹایا جائے گا۔ تو ایک طرف 61 اسیران رہائی ہوئی تو دوسری طرف جیل ملازمین کو بھی اس موقع پر خوشخبریاں سنائی گئی۔ آپ کا بہت شکریہ لیاقت۔ عمران خان کے خلاف درج مقدمات پر جے آئی ٹی کی تشکیل کا معاملہ، چیف جسٹس اور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے 3 رکنی فل بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق، اس سماعت کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ اشفاق، اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ اشفاق سے اس حوالے سے تفصیلات لیں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف درج مقدمات پر جے آئی ٹی کی تشکیل کا یہ معاملہ ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے 3 رکنی فل بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا۔ اہم کیس، اس پر 3 رکنی فل بینچ کچھ دیر میں سماعت کرے گا۔ عمران خان کے خلاف مقدمات پر جے آئی ٹی بنانے کا یہ معاملہ ہے، اس حوالے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کچھ دیر میں سماعت کرے گا۔ اشفاق سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی اشفاق، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے، سماعت کب تک متوقع ہے؟ شیخ نے اس معاملے پر لازر بینچ بنانے کی سفارش کی تھی تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے زمان پارک میں توڑ پھوڑ کرنے اور ہنگامہ آرائی کے الزام میں تحریک انصاف کے رہنماؤں پر دہشت گردی کے مقدمات کے معاملے پر جے آئی ٹی تشکیل دینے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی اور اس معاملے پر فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ فل بینچ میں جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس امجد رفیق شامل ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد فل بینچ سماعت کا آغاز کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کا اشفاق۔ ایل ڈی اے کے 3 میگا پروجیکٹس کے لیے 3 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈز جاری۔ شاہدرہ ملٹی لیول برڈ سپریشن پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے جاری کر دیے گئے۔ سمن آباد انڈر پاس کے لیے 1 ارب، لاہور برج توسیع منصوبے کے لیے 50 کروڑ روپے مل گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ زین، بتائیے گا، فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو حالیہ دورہ لاہور تھا، اس دوران وزیر اعظم کی جانب سے شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں تخیر پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تو وزیر اعظم کا یہ دورہ لاہور کام کر گیا اور پنجاب حکومت نے شہر کے جاری ترقیاتی منصوبوں پر فنڈز کی بارش کر دی ہے۔ نگران پنجاب حکومت نے پہلی بار ایل ڈی اے کے میگا ترقیاتی منصوبوں کے لیے کثیر فنڈز کا اجرا کیا ہے۔ اب تک ایل ڈی اے کے 3 میگا پروجیکٹس کے لیے پنجاب حکومت نے 3 ارب 25 کروڑ روپے کے فنڈز کا اجرا کیا ہے، جس کی
بنیادی وجہ فنڈ کا اجرا کرنے کی یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے حوالے سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ ایل ڈی اے کو فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ، سمناباد موڑ انڈر پاس اور لاہور برج توسیع منصوبے کے لیے فنڈز کا اجرا کیا گیا ہے۔ شاہدرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ کے لیے پہلے ہی 2 ارب روپے جاری کر دیے گئے تھے، تاہم اب مزید 3 ارب روپے جاری کر کے 5 ارب روپے اس منصوبے کے لیے مکمل طور پر جاری کر دیے گئے ہیں اور اس منصوبے کو 10 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے سمناباد انڈر پاس کے لیے 1 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ اب تک سمناباد انڈر پاس کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے جاری ہو چکے ہیں اور اس منصوبے کی فزیکل پروگرس ہے اس کے مطابق یہ منصوبہ 50% تک مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ زین العابدین۔ رشوت لے کر 30 کروڑ روپے کی چینی خریدنے کا کیس، سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی راہداری ڈیمانڈ پر لاہور سے راولپنڈی منتقل۔ اینٹی کرپشن راولپنڈی نے محمد خان بھٹی کے خلاف انکوائری کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، اینٹی کرپشن پنجاب حکام کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی راہداری پر اینٹی کرپشن راولپنڈی منتقل کر دیے گئے ہیں اور اینٹی کرپشن پنجاب ترجمان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ محمد خان بھٹی نے رشوت سے حاصل کی گئی 30 کروڑ روپے کی رقم چینی کا اسٹاک خرید کر انویسٹمنٹ کی۔ محمد خان بھٹی نے الائنس شوگر مل گھوٹکی میں 30 کروڑ روپے کی چینی خرید رکھی ہے اور اینٹی کرپشن پنجاب حکام کا کہنا ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب راولپنڈی نے محمد خان بھٹی کے خلاف انکوائری کر کے باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا ہے، جس میں جو ہے 409 PCC 161 162 جو ہے وہ دفعات شامل کی گئی ہیں اور اس میں لکھا گیا ہے کہ سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب کے محمد خان بھٹی نے چینی کا ایک اسٹاک الائنس شوگر ملز گھوٹکی میں خرید رکھا ہے جس کی مالیت تقریباً 30 کروڑ روپے ہے، جو اس نے شامل کیا جو برآمد ہو سکتی ہے اور اس میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ سورس سے یہ رپورٹ لی گئی ہے اور موثوق ذرائع سے جو ہے وہ معلوم ہوا ہے یہ FIR کا متن درج کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے انکوائری فائنل رپورٹ برائے اندراج مقدمہ برخلاف محمد خان بھٹی سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب سفارش کی اور دیگر کردار کا تعین اور دوران تفتیش کیے جانے کی سفارش کرتے ہوئے باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا حسن۔ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کی زیر صدارت اجلاس عید الفطر پر شہریوں کو پارکوں میں سہولیات کی فراہمی کے امور کا جائزہ۔ عید پر پی ایچ اے کے ملازمین اور آفیسرز کو اسپیشل ڈیوٹیاں تفویض، افسران کو صفائی، پرائس کنٹرول، سیکیورٹی سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین، اجلاس کا حوال بتائیے گا۔ فاروق کے عید الفطر کے موقع پر شہریوں کو پارکوں میں سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے پی ایچ اے ہیڈ کوارٹرز میں ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے جس میں پی ایچ اے کے ڈائریکٹر کی جانب سے ڈی جی پی ایچ اے کو اب تک عید الفطر کے حوالے سے جو تیاریاں کی گئی ہیں اس کے اوپر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈی جی پی ایچ اے نے عید کے موقع پر پی ایچ اے کے ملازمین اور افسران کی جو اسپیشل ڈیوٹیاں ہیں وہ تفویض کی ہیں جس میں افسران کو پارکوں میں صفائی ستھرائی، پرائس کنٹرول، سیکیورٹی سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لاکھوں وزٹر عید کے دنوں میں شہر کے بڑے پارکس کا وزٹ کرتے ہیں ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے پارکوں میں پرائس کنٹرول اور اشیاء کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی جی پی ایچ اے نے تمام پارکوں میں جھولے، اس کے علاوہ بوٹنگ لیک، آبشار اور جو دیگر فاؤنٹین ہیں ان کو بحال رکھنے کی ہدایت جاری کی۔ انتظامات کے لیے نگران وزیر اعلیٰ نے بڑے احکامات کیے ہیں۔ زائد کرائے کی وصولی اور ون ویلنگ کی روک تھام کی جائے گی۔ انتظامیہ اور پولیس کو اہداف مل گئے ہیں۔ تمام سیکرٹریز اور کمشنرز کو عملے کے پروموشن کا بھی ٹاسک دے دیا گیا۔ عید پر صفائی، ٹریفک کے انتظامات، زائد کرائے کی وصولی اور ون ویلنگ کی روک تھام کے چیلنجز۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے انتظامیہ اور پولیس کو اہداف دے دیے۔ مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف بلا تفریق ایکشن لیا جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا مری اور دیگر سیاحتی مقامات پر عید کے موقع پر خصوصی انتظامات کا بھی حکم۔ لاہور، مری اور دیگر بڑے شہروں میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے بہترین اقدامات کی ہدایت دے دی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سیاحتی مقامات سمیت تمام شہروں میں صفائی اور امن و امان پر بھرپور توجہ دی جائے۔
मोहसिन नकवी ने वन व्हीलिंग की रोकथाम के हवाले से मौसर इकदाम की भी हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि वन व्हीलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तमाम सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स को अमले की प्रमोशन का टास्क भी दे दिया और कहा कि किसी भी सूरत ACRs नामुकम्मल नहीं होनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। और ईद उल फितर की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। मजहबी त्यौहार पर खूबसूरत नजर आने के लिए शलवार कमीज मर्दों का पसंदीदा लिबास बन गया। हमारे नुमाइंदे राहिल अली अनारकली में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी राहिल, बताइएगा। ईद उल फितर की आमद में चंद रोज़ जो हैं वो बाकी रह गए हैं और उसी हवाले से जो है वो ईद की ख़रीदारी भी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खुसूसन जो नौजवान हैं उनमें जो है वो देखा ये जाता है कि ईद की मुनासबत से शलवार कमीज़ या कुर्ते जो है वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और इसी हवाले से जो है वो ख़रीदारी भी जो है वो ज़्यादा की जाती है। मैं मौजूद हूँ अनारकली में और यहाँ पर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के बड़े खूबसूरत जो है वो शलवार कमीज़ और कुर्ते जो हैं वो फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं और लोग जो हैं वो ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़ी उम्र के जो लोग हैं, ताकि ईद की जो है वो नमाज भी अदा की जा सके और ईद की जो खुशियाँ हैं और ईद के जो रंग हैं वो भी नुमाया हो सके। लोगों से बात करते हैं। अच्छा सर, आप इधर ख़रीदारी के लिए आए हैं शलवार कमीज़, ईद पे खुसूसी तौर पर नौजवान शलवार कमीज़ या कुर्ते पसंद करते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या वजह है? ट्रेडिशनल है या वैसे ही एक रवायती तौर पर जो है वो पसंद किए जाते हैं? ये रवायती तौर पर पसंद किए जाते हैं। शलवार कमीज़ अच्छा लगता है, हमारा कौमी लिबास है, तो मेरा मानना है कि पैंट शर्ट से ज़्यादा शलवार कमीज़ ज़्यादा अच्छी है। कम कौमी लिबास भी और ये पहनना भी ज़्यादा डिसेंट लगता है, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो क्या कोई पसंद आया है अभी या विंडो शॉपिंग ही चल रही है? अभी देख रहे हैं, अभी तो मार्केट में आए हैं, जो अच्छा लगेगा वो ख़रीद लेंगे। मार्केट में आए हैं, जो अच्छा लगेगा ख़रीदेंगे। और भी इधर मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताएंगे शलवार कमीज़ पसंद आया आपको? हाँ जी। तो आमतौर पे ईद पे ज़्यादातर शलवार कमीज़ ही पहना जाता है, कुर्ते शलवार कमीज़, तो क्या वजह है इसकी? कौमी लिबास है हमारा। तो आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है? क्रीम कलर। क्रीम कलर पसंद है। क्रीम कलर का कुर्ता भी जो है वो ख़रीदा जा रहा है इनकी जानिब से। दुकानदार भी इधर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ग्राहक तो है, मौजूद है, लेकिन रेट की वजह से जा रहे हैं सारे, रेट बढ़ चुके हैं। वो तो आपको ही पता है, महंगाई ज़्यादा है। जो सूट पहले मिलता था 2000-2500 के, आज वो 3000-3500 में चला गया, इस वजह से रेट ज़्यादा। शलवार कमीज़ ज़्यादा फ़रोख्त होते हैं ईद के मौके पर? बिल्कुल जी, इसी तरह महंगाई की वजह से कारोबार भी कुछ मुतासिर है, लेकिन जिन्होंने ईद की जो है वो शॉपिंग करनी है, उन्होंने अपने पसंद के शलवार कमीज़ कुर्ते जो है वो ख़रीदने भी हैं। बास्केट भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जो है वो ख़रीदी जाती हैं ताकि जो है वो मैचिंग की जो है वो चप्पल, बास्केट और शलवार कमीज़ के साथ ईद की खुशियाँ जो है वो मनाई जा सके। जी शुक्रिया आपका। ईद सर पर और परदेसी घर जाने को बेताब। बस अड्डों की तरह रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों का जम्मे गफ़ीर। कराची और कोयटा जाने और आने वाली ज़्यादातर ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। मुसाफिरों को टिकटों की रिजर्वेशन में मुश्किलात का सामना। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने की बेताबी। ट्रेनों पर रश बढ़ गया। कराची और कोयटा जाने और आने वाली ट्रेनों की 21 अप्रैल तक 100% बुकिंग मुकम्मल। रेलवे इंतजामिया की जानिब से रश के पेश नज़र चलाई गई 5 ईद स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग भी पूरी हो चुकी। ताहाल इजाफी कोचेज नहीं लगाई जा सकी। टिकटों के हसूल के लिए खार होते मुसाफिर अपनी मुश्किलात का रोना रोते हैं। तमाम ट्रेनों में टिकटें बुक हो चुकी हैं, तमाम सीटें बुकिंग है। कल की तारीख में, आज की तारीख में इन्होंने एक्स्ट्रा बोगियाँ लगाने का कहा है, वो भी नहीं लगा रहे, ना एक्स्ट्रा को ट्रेन चला रहे हैं। टिकट लेने के लिए बहुत मुश्किल का सामना है। 2-2, 3-3 दिन के बाद की टिकट मिल रही है, आज की टिकट ही नहीं मिल रही, फिर ओपन टिकट भी लेने में बहुत दुश्वारी आ रही है। बुकिंग 100% मुकम्मल होने पर मुसाफिर ओपन टिकट लेकर सफर करने पर मजबूर हैं। रेलवे इंतजामिया ने इजाफी कोचेज लगाने का मुतालिबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सराफा मार्केट में तेजी। सोना 200 रुपये फ़ी तोला महंगा। 24 कैरात सोने की फ़ी तोला कीमत 2,16,500 रुपये हो गई। 22 कैरात सोने की फ़ी तोला कीमत 1,98,550 रुपये हो गई। 21 कैरात सोने की फ़ी तोला कीमत 1,89,500 रुपये हो गई। चांदी 50 रुपये की कमी के बाद 2500 रुपये फ़ी तोला हो गई। अब्दुल कादिर से इसी पर बात करेंगे। जी अब्दुल कादिर। मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफे के रुझानात जो हैं वो मुकामी सराफा मार्केट में भी देखे जा रहे हैं और कारोबार के आगाज के साथ ही आज मार्केट में सोना जो है वो 200 रुपये फ़ी तोला तक महंगा किया जा चुका है। 24 कैरात खालिस सोने की कीमत गुज़िश्ता रोज 2,16,300 रुपये फ़ी तोला पे बंद की गई थी, लेकिन अब जो है ये 200 रुपये इजाफे के बाद 2,16,500 रुपये फ़ी तोला की सतह पर पहुंच चुकी। इसी तरह 22 कैरात सोना जो है मार्केट में 1,98,550 रुपये फ़ी तोला, जबकि 21 कैरात सोना 1,00,000
89,500 रुपए फी तोला से तजावज़ कर चुका है। ताहम चांदी की कीमतों में कमी का रुझान देखने को मिल रहा है। चांदी की कीमत 50 रुपए फी तोला जो है वो सस्ती की गई है और चांदी 2500 रुपए फी तोला आज मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से जो सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आलमी मंडी में सोने की कीमतों में तेज़ी का रुझान है, जिसके असरात मुकामी सराफा मार्केट पर भी देखे जा रहे हैं और जिसकी वजह से सोने की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और अब तक सोना 200 रुपए फी तोला तक महंगा किया जा चुका है। 24 कैरेट खालिद सोना इस वक्त मार्केट में 2,16,500 रुपए फी तोला तक पहुंच चुका है। जी, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। निगरान वज़ीर सनअत व तजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा बिलाल अफजल, इब्राहिम मुराद, सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर की शिरकत। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की वर्किंग, तजावीज़ और अहदाफ बारे ब्रीफिंग। इजलास के दौरान तजावीज़ पर अमल दरामद के नताइज का जायज़ा लिया गया। इसी पर बात करेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद। वज़ीर सनअत व तजारत और तवानाई SM तनवीर की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का पहला इजलास जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक्कद किया गया। इजलास में सूबाई वज़रा बिलाल अफजल, इब्राहिम मुराद, सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन PR और दीगर मेंबरान ने जो है वो शिरकत की। इजलास को रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की वर्किंग, तजावीज़ और अहदाफ के बारे में जो है वो ब्रीफिंग दी गई। गुज़िश्ता सालों की रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तजावीज़ कमेटी के सामने रखी गई। इजलास के दौरान तजावीज़ पर अमल दरामद के नताइज का जायजा भी लिया गया। कमेटी ने साल 2022-23 के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन के हवाले से तजावीज़ का भी जायजा लिया। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत और SM तनवीर का कहना था कि मुआशी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखकर फैसले करना है। मुख्तसर मुद्दत में आम आदमी की फलाह के लिए जो बन पड़ा करेंगे। इज्तिमाई बसीरत के साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात करें महंगाई की। रमज़ान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी रिलीफ को तरस गए। मार्केट रेट से भी ज़्यादा महंगी चीज़ें फ़रोख्त होने लगीं। शहरियों का पारा हाई। यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया से नोक झोंक चलती रही। रमज़ान मुबारक ख़त्म होने को मगर हुकूमत के रमज़ान में रिलीफ के वादे वफा न हुए। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के नाम पर ओवर चार्जिंग होने लगी। चीजें महंगी होने के साथ साथ महदूद मिकदार में बिकने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के लिए शहरी दर पर दर की ठोकरें खाने लगे। रमज़ान से पहले 89 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी रमज़ान में 91 रुपए फी किलो मिलने लगी। 578 रुपए वाला कुकिंग ऑयल 626 रुपए लीटर बिकने लगा। घी 401 के बजाय 606 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर अशिया भी मार्केट रेट से ज्यादा कीमत में मिल रही हैं। शहरी हुकूमत की तरफ से रिलीफ ना मिलने पर शदीद नला नजर आए। हर चीज़ में बढ़ के ये है। आप वो कह रहे हैं जी हमने स्लिप लगाई हुई है, ये सामने स्लिप देख लें। एक बंदा आता है नहीं आता उसको पता ही नहीं है कि ये क्या निज़ाम है क्या निज़ाम नहीं है। यहाँ पे तो आता है कि कुछ थोड़ा रियायत मिले और बाज़ार से यहाँ पे डबल रेट पे मिलता है, तो कुछ 100-150 रुपये ज़्यादा भी मिलता है, तो फ़ायदा क्या फिर यहाँ से चीज़ लेने का। रेट जो है भाईजान बहुत ज़्यादा है इधर। ठीक है, एक चीज़ है समझ लो 200 रुपये की थी, वो अब देख रहे हैं तो 500 रुपये की हुई है। डायरेक्ट 300 रुपया 250 रुपया बढ़ाया होगा हर एक चीज़ के पीछे। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर मुकम्मल रिलीफ की दरख्वास्त की है। ईद करीब आते ही मुनाफा और मुतहर्रिक मुर्गी का गोश्त दूसरे रोज़ भी महंगा हो गया। ब्रायलर की कीमत में 15 रुपये का इजाफा, कीमत 531 रुपये फ़ी किलो हो गई। लिस्ट रेट में 3 सब्जियां महंगी हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। मीठी ईद की खुशियां महंगाई ने फीकी कर दी हैं। दूसरे रोज भी ब्रायलर की सप्लाई मुतासिर। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए महंगा होकर 531 रुपए फी किलो हो गया। दो दिनों में ब्रायलर गोश्त के दाम 42 रुपए किलो तक बढ़ चुके हैं। अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने पर मुर्गी के गोश्त की फरोख्त बुरी तरह मुतासिर है। दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं ईद के दिन है, ब्रायलर रोजाना महंगा हो रहा है, गाहक है ना ही माल, जानबूझकर सप्लाई रोक ली गई है। सारी मार्केटें खाली हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे आप देखें। 2 दिन में देखें आप, उन्होंने कल परसों रेट था 490 रुपये, आज डायरेक्ट 540 रुपये पे रेट चला गया। 50 रुपये उन्होंने 2 दिन में पर केजी पे बढ़ा दिए। तो कहाँ पे आपके सामने इतवार सर पे है, 2 दिन ईद में रह गए, क्या लोगों ने परचेजिंग करनी है, क्या लोगों ने खाना है। रेट रोज़ बढ़ रहा है डेली की पोजीशन पे। अभी ईद पे आज 2 दिन रह गए हैं और सेल की पोजीशन नहीं है, हालांकि इन दिनों में बहुत अच्छी सेल होती थी। दूसरी जानिब सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए, जिनमें अरवी 8 रुपए, शिमला मिर्च 6 रुपए और शलजम 5 रुपए फी किलो महंगे हुए। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको बताएं, साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और 20 अफसरों के खिलाफ अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त।
लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस और दीगर फर्म्स पर जारी कार्रवाइयां रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जावेद इकबाल और दीगर की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तनाई जारी किया। तैयबा गुल और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और 20 अफसरों के खिलाफ अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त से मुतालिक आपको बताया जा रहा है, जो कि लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस और दीगर फर्म्स पर जारी कार्रवाइयां रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जावेद इकबाल और दीगर की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तनाई भी जारी किया। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और 20 ऑफिसर्स के खिलाफ अदालती कार्रवाई रोकने की यह दरख्वास्त है। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस और दीगर फोरम्स पर जारी कार्रवाइयां रोकने का हुक्म जारी किया। अदालत ने जावेद इकबाल और दीगर की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। तैयबा गुल और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के 3 ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। इकरामुल्लाह जनरल मैनेजर CS हेडक्वार्टर्स तैनात, खुरम अयूब खान जनरल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन ईस्ट लाहौर तैनात कर दिए गए। नवीद अशरफ को जनरल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद जानेंगे फहद अमीन से। जी फहद। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने 3 जनरल मैनेजर के तबादले कर दिए हैं। जनरल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन लाहौर ईस्ट इकरामुल्लाह जनरल मैनेजर CS हेडक्वार्टर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि जनरल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन इस्लामाबाद खुरम अयूब खान जो है वो जनरल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन ईस्ट लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह जो है वो जनरल मैनेजर कस्टमर सर्विसेज हेडक्वार्टर नवीद अशरफ को जनरल मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से इन तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शुक्रिया आपका हमें अपडेट कर रहे थे। शहर में जारी तरक्याती काम और सफाई सुथराई की सूरत हाल, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के अलग अलग दौरे। मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे और समनाबाद अंडरपास तरक्याती मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। राफ़िया हैदर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई इंतजामात का भी जायज़ा लिया। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। ज़िला इंतज़ामिया शहर के तरक्याती मंसूबों की तकमील और ईद पर सफाई सुथराई की बेहतर सूरत हाल के लिए सरगर्म अमल है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने सुबह 5 बजे लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे और समनाबाद अंडरपास तरक्याती मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान और CEO लेस्को समेत दीगर मुतालिका अफसरान ने कमिश्नर को मंसूबों पर काम की रफ्तार पर ऑन साइट ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने बिजली तनसीबात की जल्द अज जल्द मुंतकिली के लिए इजाफी अमला तैनात करने की हिदायत की। LWMC को लाहौर ब्रिज मंसूबे के गिर्द सफाई का टास्क दिया गया। समनाबाद अंडरपास मंसूबे पर कमिश्नर ने काम की रफ्तार मजीद तेज करने के अहकाम दिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर भी सुबह सवेरे फील्ड में मुतहरिक नजर आई। CEO LWMC बाबर साहिबदीन के हमरा सब्जाजार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। चांद रात और ईद के दौरान खुसूसी सफाई इंतजामात यकीनी बनाने के अहकाम दिए। CEO LWMC ने ब्रीफिंग में बताया कि ईद से कबल शहर में खुसूसी जीरो वेस्ट ऑपरेशन के लिए टीमें तीनों शिफ्टों में मुतहरिक हैं। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। निस्फ दहाई से ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल ना हो सके। LTA और पंजाब हुकूमत के दरमियान खलीज हाइल। पंजाब हुकूमत के मंजूर शुदा रिवाइज्ड PC1 में सामान के फंड्स भी शामिल नहीं किए गए, जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह इल्तवा का शिकार होने का अंदेशा है। गुज़श्ता माली साल में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने का वादा वफा न हुआ। LD ने गुज़श्ता माली साल में 11 में से 4 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस मुकम्मल करने का ऐलान किया था। नए माली साल के 9 माह गुजरने के बाद भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुकम्मल न हो सके। LD और पंजाब हुकूमत के दरमियान सामान की खरीदारी पर तनाज़ा खड़ा हो गया। पंजाब हुकूमत के मंजूर शुदा रिवाइज्ड PC1 में सामान के फंड्स शामिल नहीं किए गए। रिवाइज्ड PC1 में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की लागत में इजाफे के पैसे शामिल किए गए। सब्जाजार और रक्षात्रा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का करना LDA के लिए मसला बन गया। LDA ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस का सामान मंगवाने के लिए पंजाब हुकूमत को फंड्स की इस्तदा कर दी। पंजाब हुकूमत ने LDA को ज़ाती वसाइल से सामान खरीदने की हिदायत कर दी। LDA के बजट में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के लिए कोई फंड्स मुख्तस नहीं। पंजाब हुकूमत ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस से सामान की खरीदारी के लिए इजलास तलब कर लिया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इजलास में भी सामान की खरीदारी से मुतल्लक अमूर ज़ेर बहस आएंगे। कैमरा टीम के हमरा सैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए PDMA ने सांस ऐप का इजरा कर दिया। DG इमरान कुरैशी कहते हैं शहरी माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वालों के खिलाफ अपने मोबाइल से शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। पहले मरहले में यूनिवर्सिटीज़ के तलबा रज़ाकाराना तौर पर माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। शिकायत पर मुतल्लिका महकमा फौरी कार्रवाई करके ऐप पर अपलोड करेगा। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वालों की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी बनाया गया है। PDMA के सूबाई कंट्रोल रूम से तमाम तर सूरत हाल की मॉनिटरिंग भी जारी है।
धुआं छोड़ने वाले भट्टों गाड़ियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। आपको बताएं कि शहरी अस्पताल के फुजलजात और कूड़ा करकट को आग लगाने वालों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। महकमा एक्साइज और ताजरों के मबैन टैक्स वसूली के मामलात का जायज़ा। वज़ीर एक्साइज बिलाल अफजल की हिदायत पर महकमा एक्साइज की 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। डीजी एक्साइज पंजाब मोहम्मद अली ने कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ताजरों के साथ मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी के सरबराह डीजी एक्साइज मोहम्मद अली होंगे। एडिशनल डीजी और डायरेक्टर एक्साइज रीजन डी लाहौर कमेटी के अरकान में शामिल। मुख्तलिफ शहरों के चैम्बर्स के सदूर भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी महकमा एक्साइज के टैक्सों से मुतल्लिक ताजर बरादरी की तजावीज़ का जायज़ा लेगी। इजलास में प्रॉपर्टी टैक्स के चालान में मुबैना बेज़ाब्तियों और हाईवेज़ पर टैक्स लगाने के मामलात का जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी 10 मई तक अपनी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। सूबाई निगरान वज़ीर बिलाल अफजल का कहना है कि ताजर बरादरी के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। डीजी एक्साइज मोहम्मद अली का कहना है कि ईद के बाद प्रॉपर्टी टैक्स की सेल्फ असेसमेंट का निज़ाम मुतारिफ भी करवाया जाएगा। और ख़राब LED देने और वापस ना करने का मामला है। सारिफ अदालत ने निजी इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक के खिलाफ 60,000 रुपये की डिग्री भी जारी करने का हुक्म दे दिया। सारिफ अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने शहरी मोहम्मद अब्बास की दरख्वास्त पर डिग्री जारी की। अदालत ने दुकान के मालिक को 30,000 रुपये हर्जाना भी अदा करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ ने इख्तियार किया कि LTA में LED के लेकर घर आया तो ख़राब हो गई और स्क्रीन मुकम्मल ब्लैक हो गई थी और दुकानदार को फ़ोन किया। दुकानदार ने फ़ोन पर कहा कि वापस कर लूँगा, लेकिन उसकी दुकान पर गया तो उसने LED वापस करने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से 2,85,000 रुपये का दावा भी दायर कर रखा था। हायर एजुकेशन कमीशन की ऑर्डिनेंस में तरमीम की तैयारी। GCU के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने मुजव्वज़ा तब्दीली को जामियात की खुद मुख्तारी पर एक और हमला करार दे दिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन को पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को मदद के लिए बुलाने का इख्तियार होगा। वाइस चांसलर की सिलेक्शन के लिए सर्च कमेटी का कन्वीनियंट चेयरमैन HEC का नामजद करदा होगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने मुजव्वज़ा तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और कौमी असम्बली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि मुजव्वज़ा तरामीम आला तालीम के इदारों को नुकसान पहुँचाएगी। मुजव्वज़ा तरामीम सूबाई खुद मुख्तारी से तजावुज़ करने के मुतरादिफ है। HEC के ऑर्डिनेंस में तरमीम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद होनी चाहिए। वर्ल्ड अर्थ डे की मुनासबत से महकमा माहौलियात पंजाब का आगाही कैंप फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक और दरख्तों की अहमियत के हवाले से लोगों को आगाही दी गई। सेक्रेटरी माहौलियात डॉक्टर साजिद चौहान और DG माहौलियात नादिया साकिब ने शहरियों में पौधे भी तकसीम किए। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक का मिशन। महकमा माहौलियात पंजाब ने वर्ल्ड अर्थ डे की मुनासबत से लिबर्टी चौक में आगाही कैंप लगाया। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब डॉक्टर साजिद चौहान और DG माहौलियात नादिया साकिब की शिरकत। शहरियों में शजरकारी के फ़रोग़ के लिए पौधे भी तकसीम किए। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल माहौलियात पंजाब नादिया साकिब का कहना था कि हमें शजरकारी के साथ साथ पौधों को परवान चढ़ाने की भी ज़रूरत है। दरख्तों की अफजाइश की ज़रूरत है, इसकी कटाई की हौसला शिकनी करना होगी। लाहौर हाई कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस हैं और हम इसको 101% इंश्योर करवा रहे हैं कि कोई दरख्त किसी मकसद के लिए काटा ना जाए। लगाने और बढ़ाने में तो शायद 10 साल लगे, लेकिन 10-20 साल का जो दरख्त होता है उसको काटने से जो नुकसान होता है उसकी हमें बड़ी अच्छे तरीके से आगाही होनी चाहिए। आगाही कैंप में डायरेक्टर माहौलियात पंजाब नसीम रहमान शाह, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर अली एजाज, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर यूनुस जाहिद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़।